A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. I welcome you all in the online session of power distribution and utilization. Hope you all are fine and having good health. We start our session with a kind of review that we are discussing the distribution scheme, which are classified into three types: radial system, ring main system, and interconnected system. So in this in these systems that we have already discussed in previous sessions, so it's a little bit of review, and after that I'm coming towards our today's topic. So in radial system we have discussed about the substation that is singly connected with some kind of feeders in these branches like this, and from feeder, particularly load distributor, are drive by these branches. After the distribution transformer, which are contained here, these are the featured definition of radial main systems, radial system, and these are the drawbacks why we not prefer the radial system in our distribution system, limitations and disadvantages. Now moving towards the second category of distribution system, which is ring main system. In ring main system, by diagram I can explain you in easy model explanation. In this system you can see that there is a ring that is created in this way, and a single substation which is derived from the side to drive these particular loads. So it's a shape of ring of distribution loads. That's the reason we call it a ring main system. So what are the advantages that we already discussed in previous session, that if an artificial fault or conventionally a fault create in particular line of the feeder, then if you have any kind of question, please you can ask. I will answer your question and resolve your query. कोई सवाल है तो पूछ लीजिए. Okay, I continue my session. Uh, I was said that if a fault is created in a particular line, as you can see in the side, and due to fault, no line can be disturbed by this fault. Why? Because the line which is derived from this side, this load can also be entertained by the electricity by the side of line, this side, this one and this side. ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो यहाँ पे चला जाएगा. अगर यहाँ फॉल्ट क्रिएट होता है तो यहाँ के ब्रेकर्स इस लाइन को ऑफ या ट्रिप करवा देंगे. ऑफ या ट्रिप करवाने के नतीजे में the way of electricity can be flow from this side, and this load of user can be drive by this way. This is the main advantage of ring main system. So uh, but in last I was discussed that what is the main disadvantage in ring main system, and that was if this line is break from this side, because there is only one distribution substation that is driven by this line, and if this line is break, then the whole system would be cut off. This is the main disadvantage of this ring main system. So what will be the solution for this problem? Can you explain, anyone explain this thing, that what will be the solution of this problem? And what is the problem? That we have only a single substation, and we drive this ring main system by only this line, and if the fault is created in this line, then the whole system would be blackout. So how can we drive this feeder, or how this problem can be solved? Can anyone suggest a solution for this problem? Yes, my friend, can anyone have idea about this problem? So no one have the idea, so I'm explaining. uh, One of the solution is that we have to drive this system by two substations, particularly that would be connected at this level and particularly at this side.
that synchronize each other and then provide this side. The backup should be provided from this side and this side. Another way of solution would be that we have to drive the system by two lines, not a single line, by providing this side and also providing from particularly in the middle of this side. So there are the two way of driving the system by not a single feeder, but we have to connect a two feeders. Feeder of this the particular kind of line, that line and same line is jump same wire from the branch of this side. So this is the two ways that we can drive the system of ring main system, and the probability of failure of the system would be less. So this is the way of solution that the problem which I create in this level by the single feeder of line. So we can drive the system by two way of lines, not a single way. I think I repeat my statement, and that is मैंने ये कहा इसमें कि आप जो इस एक लाइन से सिस्टम को ड्राइव कर रहे हैं, अगर ये डैमेज हो जाती है फॉल्ट के नतीजे में, तो ये ओवरऑल सिस्टम ब्लैकआउट हो जाएगा। जितने भी आपके लोड्स होंगे, औरंगी 2.5 नंबर, कोरंगी 4 नंबर और नॉट औरंगाबाद लेट से, तो ये सब सिस्टम इससे यूजर्स जो हैं खास तौर पे सफ़र करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा ब्लैकआउट हो जाएगा यहाँ पे। सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैव टू ड्राइव द सिस्टम बाय टू वे ऑफ फीडर्स। तो हमें अगर सबस्टेशन एक ही रखना है, तो जिस तरह हमने यहाँ पे ड्राइव किया है, तो यही सेम लाइन जंप करके हम यहाँ पे भी लगा दें फीडर के जरिए। अगर हमारी इंटरप्शन यहाँ से हो जाती है, तो वो सेम लाइन यहाँ से भी पहुँच के सिस्टम को ड्राइव कर देगी। ये है मेन एक सोल्यूशन जो कि इस सिस्टम को ड्राइव करने के लिए एज अ बैकअप सप्लाई के तौर पर दिया जा सकता है। दूसरी एक प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे सबस्टेशन अगर कोई मसला हो जाता है, तो ये सिस्टम पूरा का पूरा तब भी ब्लैकआउट हो जाएगा। तो वी नीड to connect at least two substations, one for driving and another for as a backup. Backup means it also provides functionality, but in the maintenance purpose, जैसे मिसाल के तौर पे भाई दो सबस्टेशन हमने कनेक्ट कर लिए सिस्टम को ड्राइव करने के लिए, अगर एक में प्रॉब्लम आ जाती है तो दूसरा जो बैकअप और फंक्शनल के तौर पे इस्तेमाल होगा। बैकअप क्यों? क्योंकि एक में प्रॉब्लम हो तो वो इस्तेमाल कर ले, और फंक्शनल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो भी लोड को ड्राइव कर रहा होगा। अब मिसाल के तौर पे दो सबस्टेशन मिलके इस पूरे के पूरे एक बड़े एरिया को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, इसको इस तरह से अज्यूम करें। अब होगा ये कि अगर आपका एक सबस्टेशन खराब होता है, तो मेंटेनेंस के लिए चला जाएगा, जब मेंटेनेंस के ऊपर चला जाएगा, जबकि दूसरे से कुछ लोड ड्राइव होगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आएगी कि अगर आपके लोड्स इसका लोड बहुत ज़्यादा है, आपके यूज़र बहुत ज़्यादा, तो उसे ड्राइव नहीं सकते, तो उस सूरत हाल में हमें कुछ एरियाज़ को बंद करना पड़ेगा। कोई ये दोनों बंद कर दें, इसको ऑन कर दे, या फिर कुछ घंटों बाद ये दोनों ऑफ कर दें, इसको ऑन कर दें। तो इस तरीके से ये चीज़ ड्राइव हो सकती है बाय अ सिंगल सबस्टेशन। यहाँ तक मैंने ये दो प्रॉब्लम आपको बयान कर दी हैं। होपफुली देयर इज नो काइंड ऑफ क्वेश्चन और क्यूरी इन दिस problem of solution, but anyone of you have if any kind of question or query, please feel free to ask. I will explain you guys. No one have the question, then I continue the session. So moving towards the third category of system, which is interconnected system. This is our today's topic. The previous ring main and radial system, one of the two types which are we already discussed in previous session, but today the topic is interconnected system, which we start from the slide. When the feeder ring is energized by two or more than two generating station or substation, it is called the interconnected system. जो कि मैंने अभी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया, तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन इंटरकनेक्टेड सिस्टम के जरिए है। जैसे मैंने प्रॉब्लम क्या बताई थी कि रिंग मेन सिस्टम में सबस्टेशन एक है, अगर खराब हो जाता है तो तब भी ब्लैकआउट हो जाएगा। फीडर भी एक है जिसके जरिए से आपके रिंग सिस्टम को ड्राइव किया जा रहा है, अगर उसमें प्रॉब्लम हो जाती है तब भी ब्लैकआउट हो जाएगा। तो उसको मॉडिफाई किया गया है रिंग मेन सिस्टम को इंटरकनेक्टेड सिस्टम के जरिए से, ठीक है जी। तो इंटरकनेक्टेड सिस्टम के जरिए से इसको मॉडिफाई किया गया है, एंड द इंटरकनेक्टेड सिस्टम हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। इट इंक्रीज द सर्विस रिलायबिलिटी, इससे सर्विस रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है। Any area feed from one generating station during peak load hours can be feed from the other generating station, means substation की आपने quantity बढ़ा दी है उसमें। This increase the efficiency of the system. So you can see that
देयर इज अ सेम रिंग मेन सिस्टम बट सब स्टेशन कितने हो गए, दो। अब दो सब स्टेशन, दो फीडर्स, दो मतलब इसका एक और इसका एक, और इसके नतीजे में सिस्टम की ड्राइविंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे? मिसाल के तौर पे अगर आपका फॉल्ट क्रिएट होता है इस सिस्टम, इफ द फॉल्ट इज क्रिएट इन वन सबस्टेशन इट इज गोइंग टुवर्ड्स द मेंटेनेंस पर्पस, सो दिस सिस्टम वुड बी ड्राइव द होल kind of load or users from this side, Korangi 2 number, Korangi 4 number, Nazamabad 1 number, or the kind of these areas would be derived from these substation. So similarly, if this substation is going towards the maintenance purpose, so this substation would be provide or feed the system by this side to whole scenario of ring main system. So the sophisticated updation modification in the system is the interconnected system way of driving. So ये हमारा फ़ायदा है इसमें, और यही प्रॉब्लम थी रिंग मेन सिस्टम में जिसको मॉडिफाई किया गया है इंटरकनेक्ट सिस्टम के अंदर। तो ये एक बहुत बेहतरीन स्कीम और एक मॉडिफाइड स्कीम है जो कि रिंग मेन सिस्टम को मॉडिफाई करके इंटरकनेक्ट सिस्टम के अंदर हमें नज़र आती है। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है अगर किसी के जहन में, इफ एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और क्यूरी प्लीज फील फ्री टू आस्क, आई विल answer the kind of question or query. Otherwise, we continue the session moving toward the next slide. No one have the query. So the next class topic, next means the next topic that would be DC distribution system, requirements of distribution system and underground system and overground overhead system. So moving towards this next slide. So I need a little bit of some kind of seconds break, then I need to change the lecture. अच्छा जी, अब तक के लेक्चर जो हमने कवर किए हैं वैसे मैंने शेयर कर दिए हैं व्हाट्सएप पे आप लोगों के साथ, और द रिकॉर्डेड सेशन ऑलरेडी शेयर इन माय यूट्यूब चैनल which you can see in the playlist of power distribution and utilization course. So now I again sharing my screen with you guys. This is lecture 2A. This lecture I already I will share with you guys. So in this picture you can see the distribution system, and distribution system, it will be connected at this level, but the starting and ending of the power generating and utilization is from power plant at which the power is generated, transmission substation which is connected here, high voltage transmission line which is connected here, and the power substation which is again here, and after that the transformer which is here, which step down. This is the step up transformer, this is the step down transformer, and step down to this is the primary transmission high voltage, and this is the secondary transmission of the low voltage. At the end, the 11 kV transformer would be transformed in a step down to 11 kV to 400 volt, and particularly the house would be get from to 400 volt extracting with the single phase as 220 volt. This is a distribution scheme or a stream which I uh, tell you guys. So moving towards the next slide. Up till now, if anyone of you if have any kind of question, please feel free to ask. Otherwise, I continue the session. So now moving towards the DC distribution, electric power is most entirely generated, transmitted and distribution. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिक पावर होती है, वो हमारी एसी के अंदर जनरेशन होती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन मींस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब एसी में होती है. However, for a certain application, DC supply is absolutely necessary, और DC supply भी उसके लिए absolutely necessary होती है. For instance, operation of vehicle speed in machinery, उसके लिए DC मोटर लगाई जाती हैं. इलेक्ट्रो
केमिकल वर्क, उसके लिए डीसी हमारी पावर सप्लाई लगती हैं, ख़ास तौर पे जो हमारी कशीदाकारी की सनतें होती हैं इनके अंदर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर और फिल्ट्रेशन के अंदर, इन सब में डीसी एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड हैं और डीसी फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही होती है। उन पर्पस के लिए हमें उसमें डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसलिए डीसी डिस्ट्रीब्यूशन भी नेसेसरी है। ठीक है, हमारी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन अमूमन आपको पाकिस्तान में ना होने के बराबर नज़र आएगी। और दूसरा ये कि उसकी सप्लाई लाइन नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन नहीं है एज अ ट्रांसमिशन लाइन डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो करते ही हैं कि जहाँ डीसी रिक्वायर्ड होता है आप रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं, उससे आप डीसी बना लेते हैं, या फिर बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं, उससे डीसी बनाकर अपनी नीड को फुलफिल करते हैं, और मोस्टली इंडस्ट्री में यही हो रहा है। Areas where storage battery reserve as are necessary. इलेक्ट्रिक ट्रेन मोस्टली इसमें इस्तेमाल होती हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इसमें भी आपकी अच्छी खासी डीसी सप्लाइज इस्तेमाल होती हैं। और ख़ास तौर पे जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक ई बाइक हो गई आपकी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गई, इलेक्ट्रिक कार हो गई, इन सब के अंदर भी आपकी डीसी इस्तेमाल होती है सप्लाई। फॉर दिस पर्पस, अच्छा, इनको चार्ज करने के लिए भी डीसी की डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। ठीक है, कराची के अंदर भी दो जगहों पर, मेरे ख्याल में मलीर में और एक डीएचए फेज़ के अंदर कहीं पे लगी है, डिफेंस के अंदर, ये दो चार्जिंग स्टेशन के इलेक्ट्रिक और शेल के ताउन से इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग स्टेशन इन दो जगहों पर, या तीन, शाह फैसल में भी शायद लगी है, तो इन तीन जगहों पर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग सिस्टम लगाए गए हैं इन दो कंपनीज के ताउन से। For this purpose, AC power is converted into DC power at the substations by using converting machinery such as mercury arc rectifiers. Mercury arc rectifier को अगर आप देखें, इसको ज़रूर सर्च करिएगा इंटरनेट पे जाके, mercury arc rectifier कैसे होता है। और 220 केवी का मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर और 500 केवी का मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर, ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जो अब भी इस्तेमाल होती है। इसको देखिएगा, बड़ी एक आपको नज़र आएगा, इसका वर्किंग पड़िएगा, बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ रोटेटरी कन्वर्टर। रोटेटरी कन्वर्टर्स एक पर्टिकुलर एक कन्वर्टर्स होते हैं जो कि रोटेशन के नतीजे में, मैकेनिकल रोटेशन के नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी डीसी में या एसी में पैदा करते हैं। और देन मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट क्या होते हैं जी? एक जनरेटर को आपने ऑल्टरनेटर के सॉरी एक जनरेटर को आपने कनेक्ट कर दिया ऑल्टरनेटर के साथ, या मोटर से आपने ऑल्टरनेटर चला लिया, तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो मोटर जनरेटर ऑल्टरनेटर सेट कहलाता है। ठीक है, अब तक किसी को कोई सवाल है? if anyone of you if have any kind of question or query, please feel free to ask. I will answer your question and resolve your query. If anyone of you have if any kind of question, please feel free to ask. I will answer the kind of query or question. Otherwise, I continue the session. The DC supply for the substation may be obtained in the form of टू वायर। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम क्लासीफाई करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, वो दो वायर में होती है, आउटगोइंग और पॉजिटिव वायर, एंड अदर द रिटर्न और नेगेटिव वायर, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में। और ये फ़ायदा है अगर आप बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की या डीसी ट्रांसमिशन में, तो आपको ज़्यादातर उसके अंदर नज़र आएगा कि इस्तेमाल हो रहा है लेस नंबर ऑफ वायर्स। डीसी में हमारे दो वायर इस्तेमाल होते हैं, जबकि अगर हम बात करें एसी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें तीन या चार वायर इस्तेमाल होते हैं। थ्री फेस की मैं बात कर रहा हूँ ना। सेकेंड कैटेगरी of DC supply है जी, three wires consist of two outers of and middle wire is such the earth substation voltage between the outer is twice and voltage between the outer middle। इसमें तीन तारें इस्तेमाल होती हैं जिनमें दो जो है पॉजिटिव नेगेटिव है और एक जो है वो अर्थ की वायर होती है प्रोटेक्शन पर्पज के लिए। ये बात हो रही है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में तीन वायर इस्तेमाल करने की। ठीक है जी, यहाँ तक इसको एक नज़र पढ़ लें दोबारा। मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद दोबारा सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। कोई डिफिकल्टी किसी के
ओके जी, कंटिन्यू करते हैं सेशन को। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करें, सो वी हैव द टू स्कीम्स। नंबर वन इज ओवरहेड system. Overhead lines are generally mounted on wooden, concrete, or steel poles, which are arranged to carry distribution transformers in addition to the conductors. Moving towards the underground system. अंडरग्राउंड तकरीबन ओवरहेड तो आप जानते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो कि नज़र आ रही होती हैं आपकी आंखों के सामने ओवरहेड जा रही होती हैं ऊंचाई पे। अंडरग्राउंड स्कीम्स वो होती हैं जिनको आप ज़ेर ज़मीन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तरसीली निज़ाम के लिए, बरकी बरकियात को उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अंडरग्राउंड सिस्टम यूजेस कंडक्ट्स केबल conductors, cable, manholes under the surface of streets and sidewalks। मतलब ये एक साइड वॉक्स, जैसे आपने वो देखी हो एक जो दाऊद यूनिवर्सिटी है, दाऊद यूनिवर्सिटी के साथ जो पेडिस्ट्रियन के चलने का जो रास्ता है, राहगीरों के चलने का जो रास्ता है, उसके नीचे जो है वो अंडरग्राउंड केबल उसकी बिछी हुई है। ठीक है, जैसे आप मज़ार कायद देखें तो पहले कराची कैपिटल हुआ करता था, तो इसकी जो कुछ ऐसी जगहें हैं, ख़ासतौर पर मज़ार कायद हो गया या उसके इर्द गिर्द का एरिया हो गया, तो यहाँ पर, और जैसे दाऊद यूनिवर्सिटी की साइड की जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन लाइन है, सब डिवीजन ट्रांसमिशन लाइन, वो सारी अंडरग्राउंड रखी गई हैं। तो इनमें कभी फॉल्ट आता है तो वो बेचारे फिर वो अपने स्पेक्ट्रम एनालाइजर लेके आते हैं या फिर वो ट्रांसमिशन लाइन के ट्रेसर्स लेके आते हैं और उनके ज़रिए से उसको वो मेजर करते हैं और पता लगाते हैं कि ज़ेर ज़मीन केबल कहाँ पे बिछी हुई है, और फिर उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन फॉल्ट्स होते हैं, जो उसमें मसले मसाइल आते हैं, उसको वो डिटेक्ट करवाते हैं। तो इस तरीके से उनमें ये चीज़ की जाती है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये अच्छा, ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है हमारी केबल की और ट्रांसमिशन लाइन की, ये हम वो जो सीवरेज के मेन होल्स होते हैं उनके लिए ये नहीं की जाती, मतलब गटर की लाइनों के साथ जो होल्स होते हैं उनमें नहीं की जाती, बल्कि इनकी अलग से पूरी ट्रंच होती हैं जो ज़ेर ज़मीन बिछाई जाती हैं और उनमें सीवरेज का पानी वगैरह कोई वो नहीं होता। इनके मेन होल समथिंग डिफरेंट होता है, वो अलग सिनेरियो है। अंडर सरफेस ऑफ स्ट्रीट एंड साइड वॉक्स, और ये साइड वॉक्स में बिछाए जाते हैं। ये डायरेक्टली मेन रोड में या आपको सर्विस रोड में नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, कि मतलब अगर सर्विस रोड में खुदाई कर रहे हैं, वहाँ पे केबल बिछी हुई है, मेन खोदना पड़ जाए आपको, वहाँ नहीं जाती, इसलिए इसको साइड वेज साइड वॉक्स स्ट्रीट्स ऑफ साइड्स के अंदर इसको बिछाया जाता है, ताकि अगर इसमें फॉल्ट आता है तो ट्रेस करने में आसानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई कम करनी पड़े और रोड आपको खोदना ना पड़े दरमियान से। तो ये सब चीज़ें इसलिए देखी जाती हैं और बताई जाती हैं। The choice between the overhead and underground system depends upon the number of site widely differing factors। अच्छा, कोई इसमें बताएगा कि हमारे से मुराद कोई भी प्रोडक्ट के नतीजे में ओवरहेड सिस्टम बेहतर है या अंडरग्राउंड सिस्टम बेहतर है हमारे लिए? आप क्या समझते हैं? सर दोनों जो है ना अपने अपने हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा बेहतर है। वैसे ओवरहेड सिस्टम बेहतर है क्योंकि हर चीज़ जो है ना सामने होती है, फॉल्ट वगैरह सामने दिखाई देते हैं सर। अंडरग्राउंड सिस्टम इसलिए बेहतर नहीं है सर, उसमें थोड़ा फॉल्ट डिटेक्ट करने में और फॉल्ट को रेक्टिफाई करने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, जबकि ओवरहेड सिस्टम में ऐसा नहीं होता। वो फॉल्ट जो होता है आँखों के सामने होता है, सारा को बंदा फाइंड कर सकता है ऊपर से। जी, ये बिल्कुल वैलिड बात है आपकी, और हम इसी चीज़ को अब आगे बढ़ाएंगे और इस पे ही बात करते हैं। ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड सिस्टम की अगर हम बात करें तो ओवरहेड के अंदर जो हमारी पब्लिक सेफ्टी है वो कम होती है, जबकि अंडरग्राउंड में पब्लिक सेफ्टी ज़्यादा होती है। हमारे इलाके में पहले ही होता था, आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले मैं बात बता रहा हूँ, तो उसमें वो सिल्वर की तारें डाल देते थे और जो लोड है इलाके का वो बहुत ज़्यादा था। तो होता ये था कि दो वजूहात की बिना पे जो है तारें आपस में मिल जाती थी। एक तो लोड बढ़ गया, तारें टूटी और फेस टू फेस से टकरा गई और उससे धमाके होते थे और वो तारें गरम गरम और शॉर्ट सर्किट की लोगों के ऊपर जो गुजर रहे होते थे, कोई बाइक पे जा रहा है, सुजुकी में जा रहा है, कार में जा रहा है, पैदल जा रहा है, उसके ऊपर वो तारें गिर जाती थी। तो इससे पब्लिक सेफ्टी बहुत मुतासर होती है। अंडरग्राउंड में फिर भी ये चीज़ है। अच्छा, दूसरा मसला क्या होता था, ओवरहेड के अंदर वो हवा तेज चलती है और तारों जो तारे क्योंकि ओपन होती थी आपस में मिल जाती थी, वो भी टूट के लोगों पे गिरती थी नीचे। तो ये चीज़ एक बहुत एक खौफ होता था लोगों का सिर्फ रोड पे गुजरने में ही, कि मतलब हम ऊपर देखते हुए गुजरते, हवा तो नहीं चली गई मतलब, या
तारे गर्म तो नहीं हो रही समथिंग। तो ये एक प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा ये चीज़ मैंने खुद फेस करी है, डर डर के गुजरने की। पब्लिक सेफ्टी इससे बहुत मुतासर होती है, लेकिन बहरहाल के इलेक्ट्रिक ने सिस्टम अपना कवर करा है, सेफ्टी काफ़ी हद तक इसमें बढ़ा दी है। तो कवर केबल से ओवरहेड में काफ़ी हद तक एक जान पड़ गई है। बहरहाल अंडरग्राउंड में सेफ्टी ओवरहेड के मुकाबले में ज़्यादा होती है क्योंकि केबल्स अंडरग्राउंड होती हैं। इनिशियल कॉस्ट जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा होती है आपकी अंडरग्राउंड में, जबकि ओवरहेड में अंडरग्राउंड के मुकाबले में कॉस्ट कम होती है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ओवरहेड के अंदर आपकी ज़्यादा होती है, लेकिन अंडरग्राउंड में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खोद नहीं सकते, आप हर जगह खोद नहीं सकते, आप लिमिटेड वेव्स में उसे एडजस्ट करना पड़ता है, और ज़ेर ज़मीन केबल डालना कोई इतना आसान नहीं होता। ठीक है, फॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो फॉल्ट फॉल्ट ज़्यादा होना या फॉल्ट ट्रेस करना, ये दोनों एक ही तकरीबन कैटेगरी में आती हैं बातें। तो वो ओवरहेड के अंदर आसान है, जबकि अंडरग्राउंड में बहुत मुश्किल है फॉल्ट को रिपेयर करना, फॉल्ट को ट्रेस करना। जिस तरह आशिक साहब ने बताया, बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे। अपेरेंस की अगर आप बात करें तो वो होती है ओवरहेड के अंदर, जबकि मतलब कम है, जबकि ओवरहेड अंडरग्राउंड के अंदर वो चीज़ ज़्यादा है। मूविंग टुवर्ड्स द ओवरहेड वर्सेस अंडरग्राउंड सिस्टम, अगर हम फॉल्ट एंड रिपेयर लोकेशंस की बात करें तो फॉल्ट लोकेशन एंड रिपेयर्स की बात करें तो वो ओवरहेड के अंदर ज़रा आसानी से हो जाती है, जबकि अंडरग्राउंड में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इसमें। यूज़फुल लाइफ वो आपकी ओवरहेड की कम है लेकिन अंडरग्राउंड की ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि आप अगर अंदाज़ा करें ओवरहेड के जो केबल्स होते हैं वो हर किस्म का मौसम जो है बर्दाश्त करते हैं, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ख़ज़ा हो, बहार हो, या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया, तारे आपस में मिल गई, हवा चल गई, ये सारे सारे फैक्टर के नतीजे में जो केबल होता है वो बहुत ब्रेक कर रहा है। दूसरा ये है कि एयर के नतीजे में आयनाइजेशन हो रही होती है, बाकी सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं इनका इफ़ेक्ट है, और ख़ास तौर पे जो आपकी मज़ीद दीगर केबल्स गुजर रही होती हैं, इंटरनेट का केबल है, उनके अंदर एक नॉइज़ इम्यूनिटी क्रिएट करता है। इसको इस तरह सपोज़ करें कि एक पोल है, उसके ऊपर 11 केवी का सर्किट भी जा रहा है, उसके ऊपर जो है 400 केवी 400 वोल्ट का भी सर्किट जा रहा है, उसके पास से वो जो डिश के केबल की तार है वो भी उसके खंभे से गुजर के जा रही है, इंटरनेट की केबल वो भी खंभे से गुजर के जा रही है, सीसीटीवी की उससे खंभे से गुजर के जा रही है। तो इन सब के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का नॉइज़ इम्यूनिटी फैक्टर है वो इन सब के अंदर आ जाएगा, और इन सब में नॉइज़ बढ़ेगा, इंटरफेरेंस बढ़ेगी। तो ये भी, और ये सब ओवरहेड के नतीजे में नुकसानात होते हैं। ठीक है, नॉइज़ बढ़ जाती है, इसे कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं बिल्कुल, इनके फ़िल्टर्स होते हैं वो सब अपनी जगह है, लेकिन ये एक फैक्टर तो है ना जिसको हमें बीइंग एन इंजीनियर एड्रेस करने की ज़रूरत है। और इससे जो इफ़ेक्ट होता है वो डायरेक्टली इसके केबल्स के ऊपर भी आता है। तो इस वजह से इनकी जो यूज़फुल लाइफ है वो ओवरहेड की कम होती है, अंडरग्राउंड की ज़्यादा होती है। अंडरग्राउंड तो बेचारा वो है ही कवर और नमी के अंदर, उसको एक ही मौसम बर्दाश्त करना है और उसको नमी में ही रहना है, तो इसलिए उसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वाले जो ओवरहेड का सिस्टम है ये खुले जगह के ऊपर लगे होते हैं, तो इनके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स का इफेक्ट होता है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले सब बयान किया आपको। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो ओवरहेड की जो है वो ज़्यादा है, जबकि अंडरग्राउंड की कम है, क्योंकि इसमें फॉल्ट मेंटेनेंस के कम आते हैं लेकिन मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। अच्छा जी, इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन वो इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। तो इसको ज़रा पढ़ें, मैं एक कॉल ले लेता हूँ, वो आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हम क्लास कंटिन्यू करते हैं अगेन। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में हो तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। सवाल है सर इसमें एक जी एक और पॉइंट ऐड हो सकता है सर, कैपेसिटेंस इफेक्ट का ना। जी, बताएं बताएं। सर जो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है उसकी कैपेसिटेंस इफेक्ट का जो इशू होता है वो ज्यादा होता है, ओवरहेड में कम होता है सर। कैपेसिटिव इफेक्ट कैसे आएगा अंडरग्राउंड में, ये बताएं। सर जो केबल होती है, जो जैसे हमारे कैपेसिटर के दरमियान वो बन रहा होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, और मीन्स के वो दो प्लेटों के दरमियान जो चार्ज होता है, सेम इसी हम्म, तरह हमारा ग्राउंड और केबल के दरमियान जो सिस्टम है ना सर, कैपेसिटर इफेक्ट का मीन्स के वो का रोल प्ले कर रहा होता है। जी जी जी, ये मैं इस तरह बताता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें ये चीज़ होती है। तो हमारे अंडरग्राउंड के अंदर कैपेसिटिव का इफेक्ट ज़्यादा होगा, जबकि ओवरहेड के अंदर कम होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ भी इसमें ऐड हो सकती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके अलावा अगर कोई चीज़ मज़ीद कोई कमेंट करना चाहे, कोई बात पूछना चाहे तो बता दीजिए, हम नहीं तो आगे चलते हैं। ओके, सो फॉर द अबव कंपैरिजन इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ क्लियर दैट ईच सिस्टम हैज़ इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जिस तरह आशिक साहब ने भी शुरू में बताया कि डिपेंड करता है कि आप कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं। अब आप इस्लामाबाद में अगर इंस्टॉल करेंगे तो ऑब्वियसली वो अंडरग्राउंड नहीं, क्योंकि वो कैपिटल भी है, शहर की खूबसूरती भी होती है, और वहाँ से लोग जो है विजिट करने आते हैं। आपके बहुत सारे बड़े इदारों के लोग होते हैं, IMF के लोग हैं, बहुत सारे। इस तरह वो तारे ऊपर नजर आएंगे तो बुरी लगती हैं, इसीलिए उनका ज़्यादातर इस्लामाबाद में अगर आप एरियाज देखें तो वो अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन पे चल रही हैं। तो उसकी वजह से भी दूसरा प्रायोरिटी क्या है आपकी, तीसरा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अंडरग्राउंड में लेके जाएंगे। जिस तरह आशिक साहब ने बताया कि इसके फॉल्ट ट्रेसिंग हो गई, मेंटेनेंस का पर्पस हो गया, और दीगर मसले मसाइल हैं, आपको खोदना पड़ता है केबल को निकालने के लिए। तो ये प्रॉब्लम को देखते हुए सफिस्टिकेट सिस्टम ऑफ इंस्टॉलेशन आप करते हैं, उसके मुताबिक फिर अंडरग्राउंड को इंस्टॉल करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि आप एक नॉमिनल से इलाके की लगा रहे हैं या फिर आप कैपिटल के लिए लगा रहे हैं। तो इन दोनों में फ़र्क होता है, प्रायोरिटीज़ का भी और फंड्स का भी। Overhead system is adopted for distribution, and the use of underground system is made only where overhead construction is unavailable or prohibited by the local laws। अब ये local laws इस पर डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ लगाना चाह रहे हैं, कहाँ नहीं लगा रहे हैं, आपके फंड्स कितने हैं, और आप जहाँ के लिए लगा रहे हैं वहाँ पर अंडरग्राउंड एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। क्योंकि अब जैसे वो इलाके, वो एरियाज जो कच्ची आबादी के होते हैं या फिर जिन लोगों ने अपने घर बढ़ा के आगे कर लिए हैं, वहाँ पर अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो केबल खोदनी पड़ेगी, वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। क्या इतनी जगह भी है? बहुत सारे एरियाज ऐसे भी हैं जो कि स्लम एरियाज हैं, वहाँ पे तो जगह ही नहीं है, ओवरहेड ही लगाना पड़ेगा आपको। बल्कि ओवरहेड की जगह भी नहीं है, लोगों ने घर खंभों से आगे निकाल ली हैं। तो वो बेचारे केबल किस तरह इंस्टॉल करते हैं, आपने खुद देखा होगा। घरों के दीवारों से टकराती भी जाती हैं डिस्ट्रीब्यूशन केबल्स। किसी ने देखा है ये चीज हो रही होती है अमूमन? जी सर। तो लाहौर में अगर आप देखें, लाहौर में बहुत ऐसा किया इन लोगों ने। लेकिन लाहौर की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप देखें तो मुझे भी याद आया, तो मैं बताता हूँ आपको। लाहौर के अंदर लोगों ने घर इतना आगे निकाला हुआ है कि वो खंभों से 11 के भी गुजार रहे हैं। ठीक है, 11 के भी गुजार रहे हैं, तो घर इतना आगे निकाला हुआ है कि वो तार जो है टकरा रही है आपके घर से 11 के भी। तो मैंने एक जगह ये चीज़ देखी, मैं आपको बताता हूँ। एक बंदे ने पूरे घर में टाइल्स लगाए हुए थे, टाइल्स या मार्बल होते हैं। तो वो लगाते लगाते पूरे घर बड़ा खूबसूरत उसने बना दिया ना, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। तो बाकी एक पोर्शन बचा जहाँ से तारे गुजर रहे थे 11 केवी की, वहां से उसने वो टाइल्स छोड़ दी है। प्लस्तर हुआ हुआ था लेकिन टाइल्स छोड़ दी उसने। अब वो एक सिर्फ इस दाग की वजह से वो घर बदनुमा लग रहा था। तो भाई घर जरूर बनाए लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स के मुताबिक देखते हुए बनाए। और लाहौर में एक बड़ा मसला ये है कि उन्होंने 11 केवी जो है वो घरों के पास से गुजारी हुई है, यानी गलियों में से 11 केवी गुजारी हुई है। लाहौर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप देखें बड़ा बेहतरीन है, इतना उन्होंने इंटरकनेक्टेड को भी इतना एडवांस किया है वहाँ पे कि आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या स्कीम देखें। जैसे वो जा रहे हैं ना, वो के इलाके हरबंसपुरा, भीमपुरा, ये इलाके इनकी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। तो इनकी एक वो बीच में नहर भी जा रही है जो वहाँ से वाघा बॉर्डर के जरिए इंडिया से आ रही है, ठंडा पानी बड़ा होता है उसका। उसके लेफ्ट पे आप देखें और राइट पे देखें तो जो सर्विस रोड्स हैं
उनमें डिस्ट्रीब्यूशन की उनकी तारें जा रही हैं और बड़ी बेहतरीन किस्म की कवर केबल गुजारी है उन्होंने 11 केबी के अंदर। और इसके अलावा उन्होंने जो उसमें गलियों में गुजारी हुई वो घर में गलियों के अंदर घरों के करीब से जो है 11 केबी गुजारी हुई है। जबकि कराची में ऐसा नहीं है। कराची के अंदर आपको मिलेंगी एक तो कवर केबल है, मोस्टली एरियाज में तकरीबन लग चुकी हैं, और वो दूसरा 400 वोल्ट के अंदर 11 के भी उन्होंने इलाकों के अंदर घरों के गलियों में से नहीं गुजारी हुई। लाहौर के अंदर एक ये बहुत डिसएडवांटेज मैंने देखा है। अब वो घर बेचारे मजदूर बना रहे होते हैं, आपने पहले सुना होगा कि ये चीज़ बात है 3 या 4 साल पहले की, कि वो फर्नीचर को लोहे का ट्रांसफर कर रहे थे तो वो किसी तरह बाहर निकल गया, और बाहर जहाँ वो ग्रिल से निकला वहाँ पे 11 केवी की तार जा रही थी, उससे टकराया। जितने 4 मजदूरों ने या 3 मजदूरों ने सामान उठाया हुआ था उन सबको करंट लगा, उसी वक्त मर गया 11 केवी की वजह से। तो ये एक बहुत तकलीफदेह चीज़ है। और आपको गलियों में से, इलाकों में चले आप मेन रोड पे गुजार दें 11 केवी, लेकिन गलियों में 11 केवी गुजारना तो बिल्कुल भी अक्लमंदी का काम नहीं है। बहरहाल वहाँ की जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ की स्कीम्स हैं, उसके मुताबिक उन्होंने देखते हुए चीज़ की होगी, लेकिन ये एक अक्लमंदी वाला काम नहीं है गलियों में से 11 केवी गुजारना, जो कि मैंने देखा है। अगर आपको गुजर हो कभी लाहौर की इलाकों में गलियों में, तो आप देखें, आपको अंदाज़ा होगा इसका। यहाँ तो कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछें, मैं क्यूरी डिस्कस कर लूँगा, आंसर्स दे दूँगा आपके सवालात सर के। वैसे जी वैसे सर मैं कह रहा हूँ जी इसको सेव तो हम कर सकते हैं ना, कोई सेंसर वगैरह ऐसे लगा के जिसके थ्रू मीन्स के वो ऑलरेडी डिस्टेंस है ना मेजर कर लें कि एक चीज़ जो है वो इन हो रही है, तो उस हिसाब से लाइन को ट्रिप का सिग्नल मिल जाए, जैसे वोल्टेज के हिसाब से एक डिस्टेंस होता है ना सर। जी कैसे सर प्रोटेक्शन कर सकते हैं ना? जी जी आशीष साहब, दोबारा आप बोल देंगे? सॉरी, मैंने आपकी बात सुनी नहीं, थोड़ा उसमें सिग्नल का इशू आ रहा है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे अगर हम आईआर सेंसर लगा दें लाइन के बेस पे ना, इस तरह की एडजस्टमेंट करें कि वो कोई भी बंदा आए अगर उसको टच होने से पहले एक स्पेसिफिक डिस्टेंस उसमें हम डाल दें ना, तो जी जी उससे वो सेंस करके हमारी लाइन को ना ट्रिप करा दे। नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती कि आईआर के आप देखें। पहली चीज़ तो ये कि केबल गलियों के मुताबिक टर्न भी हो रही होती है। दूसरा, वो लंबी लंबी गलियां हैं जहाँ पे उसमें गुजर रही हैं। तीसरा ये है कि आप कितनी जगहों पे आईआर लगाएंगे, और 11 केवी पे लगाना है। वैसे सर इस तरह का कोई सिस्टम होना चाहिए वैसे सर। होना तो ज़रूर चाहिए। ये एक अजीब सी चीज़, सूरत हाल है जो कि हो रही है और है लाहौर में। और बहरहाल अगर उसे वो कवर कर दें तो काफ़ी हद तक आसानी हो सकती है। इसका एक ये सोल्यूशन हो सकता है, कवर केबल कवर कर दें अगर उसे ना, जैसे कवर केबल कराची के अंदर है तो 11 के भी गुजारें जी आप, सर, लेकिन उसे कवर कर दें। कवर ये करके सर वैसे इंसुलेशन केबल भी यूज कर सकते हैं ना वहाँ पे। हाँ, लेकिन इसमें फिर असल में वहाँ पे लेस्को है ना, और वो गवर्नमेंट का इदारा है। यहाँ तो के इलेक्ट्रिक है, फिर वो खर्चा करने में भी तो बात है ना, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना, फिर वो करना, और फिर उसमें टाइम कितना लगना। प्राइवेट फर्म का एक दो दो फायदे हैं। एक तो उनको फंड का मसला नहीं है, वो तो हम जैसे लोगों से, आप जैसे लोगों से ले ही लेंगे टैरिफ बढ़ा के या फ्यूल एडजस्टमेंट या जो भी है। और दूसरा हॉपर रिप्लेस कर देंगे। तीसरा ये कि वो काम जल्दी करते हैं, क्योंकि प्राइवेट फर्म कॉन्ट्रैक्टर के जरिए काम करवाते हैं और फिर उनको बहुत जल्दी करवा लेते हैं। गवर्नमेंट का काम जरा स्लो होता है। तो 2-3 बातें हैं इसमें। तो बहरहाल इसका सोल्यूशन तो हमने डिस्कस कर लिया, फिर हम इससे आगे चलते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की क्या होती हैं, अब इस पर बात करेंगे हम। A considerable amount of effort is necessary to maintain an electric power supply within the requirements of various types of consumers. Some of the requirements of a good distribution system are प्रॉपर वोल्टेज। इनके प्रॉपर वोल्टेज होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट ये, अगर प्रॉपर वोल्टेज, पूरे वोल्टेज नहीं होंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते सही तरह की। जैसे पुराने टाइम में अगर आप कराची की बात करें तो केईसी के टाइम में वोल्टेज की फ्लक्चुएशन और वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती थी, जिसको के इलेक्ट्रिक ने बहुत इम्प्रूव किया है। अब आपको वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगी। 220 से 230 के दरमियान वोल्टेज या 34 बाजों का तार होते हैं, तो आपको एक कांस्टेंट लेवल के मिलेंगे जो कि अब प्रॉपर वोल्टेज है, जो कि रिक्वायरमेंट भी है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। नंबर 2 है जी अवेलेबिलिटी ऑफ पावर ऑन डिमांड।
जब पावर की डिमांड की ज़रूरत हो, सिस्टम आपका ट्रिप ना कर जाए, सिस्टम आपके ब्रेकर का, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का ट्रिप ना कर जाए, ऑफ ना हो जाए। तो जब आपको अवेलेबिलिटी हो, आपको डिमांड पूरी की जाए, जैसे ईद में ले लें या आपके जब पीक लोड्स होता है गर्मियों के अंदर, आपको डिमांड की ज़रूरत है, तो आपका सिस्टम ब्लैकआउट ना करे, आपका सिस्टम जो है वो शॉर्टफॉल ना करे, बल्कि आपकी डिमांड के मुताबिक अवेलेबिलिटी पावर की सिस्टम में मौजूद होनी ज़रूरी है, जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाए। ये एक रिक्वायरमेंट है। रिलायबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि जी, एक तो जो जिस आप लाइन से केबल बिछाई गई है उतने एम्पेयर का केबल होना भी चाहिए। एम्पेयर रेटिंग ऑफ द गेज केबल की बात हो रही है, वो मिलनी चाहिए। दूसरा, जितनी एम्पेयर की रिक्वायरमेंट है आपकी, वो मीटअप होनी चाहिए। जब ज़रूरत हो इलेक्ट्रिसिटी की तब आनी चाहिए। ये चीज़ रिलायबिलिटी का पॉइंट उस वक्त फुलफिल होता है जब आपके पास मार्केट में कंपटीशन हो। अब देखिए, हमारा मसला ये है कि हमारे साथ सिर्फ के इलेक्ट्रिक है, हमारे पास और यूटिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात ले लें या न्यूजीलैंड की ले लें या दीगर की देखें, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशंस की बहुत सारी कंपनीज हैं जो यूटिलिटी आपको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। उनमें वो फीचर्स प्रोवाइड करती हैं कि एसी डिस्ट्रीब्यूशन देंगी, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन देंगी, उनका टैरिफ क्या होगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रही होंगी। आप कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करें उतनी ज़्यादा आपको सस्ती पड़ेगी, उतनी ही आपको महंगी नहीं पड़ेगी। आपका टैरिफ सेम होगा, 50 यूनिट के बाद जो है रेट नहीं बढ़ जाएगा उसका, या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कम होगी उसकी, या फिर मीटर रेंट नहीं देना पड़ेगा। तो इन चीज़ों के अंदर वो वेव ऑफ देते हैं, जिसके नतीजे में मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ता है। और जब कंपटीशन बढ़ता है, सर्विस प्रोवाइडर कैसे हैं, हर वक्त ये तो नहीं लोड शेडिंग हो रही है, फ्लक्चुएशन वोल्टेज में हो रही है, फ्रिक्वेंसी में फ्लक्चुएशन हो रही है, केबल हल्के डाल दिए या पूरी डिस्ट्रीब्यूशन मेन स्ट्रीम में प्रोवाइड करके नहीं दी। इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से जब वो प्रोवाइड करके देते हैं, तो इससे मार्केट में यूटिलिटी के दरमियान कंपटीशन बढ़ता है और उससे आपकी रिलायबिलिटी मेंटेन रहती है। क्योंकि फिर आपकी उस प्राइवेट फर्म को पता होता है कि जब मैं रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे जितने भी कस्टमर हैं वो दूसरी यूटिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो जहाँ पर कंपटीशन नहीं होगा, वहाँ पर आपको मोनोपोली का सामना करना पड़ेगा। मोनोपोली का मतलब पता है? जी जनाब। सर मोनोपोली ये होता है ना कि एक सिस्टम मीन्स के जानबूझ के सिस्टम अगर वो डिस्टरबेंस आ रही है तो दूसरे को यूज करते हैं। नहीं नहीं, ये मतलब नहीं होता। मोनोपोली का मतलब होता है इजारादारी। मतलब मेरी चीज़ है, मैं कितने में बेचूं, मेरी चीज़ है, मैं बेचूं या ना बेचूं, मेरी चीज़ है, इतने में ही ख़रीदनी पड़ेगी क्योंकि सिर्फ मेरे पास ही है। दिस इज़ मोनोपोली, दिस इज़ इजारादारी। सही है ना? तो ये चीज़ होती है मोनोपोली, जो यस कि सर। के इलेक्ट्रिक ने क्रिएट की हुई है कराची के अंदर। आप किससे लेंगे वन इलेक्ट्रिसिटी बताएं? लेस्को, हेस्को, हब को, चलें क्वेस्को को ले लें या कैनअप से ले लें, नहीं ले सकते आप इनसे, क्योंकि एक तो ये दूर बहुत है और दूसरा इनकी और डिस्ट्रीब्यूशन सर स्कीम नहीं है। आपके पास के इलेक्ट्रिक ने पूरा जाल बिछाया जो कि इस चीज़ से उन्होंने इनहेरिट किया है। तो आप बाउंड है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी चलानी है तो आपको उनसे ही लेनी पड़ेगी। अच्छा चलिए, एक सवाल है यहाँ पे ना, मैं के इलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, फिर भी मैं अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी चलाना चाहता हूँ, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? जी जनाब, कोई जवाब देगा इसका? मैं के इलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी चलाना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा? सर सोलर प्लांट लगा लें। सोलर प्लांट लगा लो। लेकिन आपको पता है नेपरा के यस सर। रूल्स, और नेपरा के रूल्स के मुताबिक आपके ऊपर जुर्माना हो जाएगा कि अगर आपने खुद बिजली पैदा करी। ये जुर्म है, पता है आपको? आप, सर वैसे ये गलत नहीं है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन इसके रीजंस हैं, मैं बताता हूँ उसके। लेकिन ये गलत है, लेकिन ये जुर्म है। आप, इसीलिए आपको अगर सोलर प्लांट अपने घर में इंस्टॉल करता हुआ के इलेक्ट्रिक की टीम ने देख लिया या नेपरा की टीम ने देख लिया या आपके घर में प्लांट लगा हुआ देख लिया, वो जो कि सफिशिएंट एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है और आपने उनसे नहीं ली हुई, तो फिर आपके घर में एक तो इसका जुर्माना आएगा, आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और वो नॉमिनल 50,000 की है। ये इनके रूल्स में लिखा हुआ है। जो जो आप वो करते हैं ना, जब नेट मीटरिंग करवाते हैं, नेट मीटरिंग, तो उसके उसूलों में लिखा हुआ है कि आपको अलाउ नहीं है कि अपनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके आप अपनी खुद इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें और आपको ड्राइव करें। ठीक है, ये अलाउ ही नहीं है ये। तो आप इसको लगा ही नहीं सकते घर में। इसकी वजह क्या है बता देता हूँ।
वजह यह है कि यूज़र के एंड पे उसको इतनी समझ और इतनी सेफ्टी नहीं होती कि वो खुद इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके अपने आप को ड्राइव कर ले, भले आप इंजीनियर क्यों ना हो। तो इसीलिए आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी करनी भी है तो आपको हमसे लेनी पड़ेगी, यानी के इलेक्ट्रिक से, ठीक। तो इसीलिए जो भी लोग लगाते हैं उनको इसकी अवेयरनेस होना ज़रूरी है। काफ़ी लोगों के घर में इसका जुर्माना हो भी चुका है, कुछ स्टूडेंट ने पिछले टाइम मुझे बताया था कि, और फिर इनके रूल्स में भी लिखा हुआ है ये चीज़, तो देख दाख के लगाइएगा भाई, अगर लगा भी रहे हो तो के नज़र ना आए, वरना तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अच्छा, ये सेशन यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो रहा है, मैं इसे दोबारा से ज्वाइन करूँगा सेम लिंक से, तो आप इसे ज्वाइन करिएगा। और ये रिलायबिलिटी के ऊपर हमने बात कर ली है, होपफुली रिलायबिलिटी और इन सब पे बात हो गई है। नेट मीटरिंग के ऊपर भी हम इंशाल्लाह जब उसका टॉपिक आएगा बात करेंगे।